वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिक रीजन्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए एक ही इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनिक रीजन्स इन द वर्ल्ड, जिसका हम आधा कराए हैं आप लोगों को पहले भी, बट आज पूरा का पूरा बनाएगा कितना परसेंट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशंस है। ये आपका प्रीलिम्स के भी काम आ जाता है और मेंस के लिए कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। यानी मेरे पास सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनिक रीजन्स। ठीक है, नाउ देयरफॉर अंडर वॉल्केनो वी हैव टू स्टडी फर्स्ट, we will try to understand what is a volcano, what is volcano and what is volcanism, though it is not that required, but volcano is volcanism. ठीक है, number second we have to see constituent of volcanic eruptions second. Number third, important, we will do the important landforms here. Why I am saying that, there are certain landforms, intrusive landform especially, intrusive landform, this landform are very difficult to memorize, but still if you want we can do, but at this moment I suggest you to skip that one because एग्ज़ाम आने ही वाला है फिर नाराज मत हो। I will tell you why we should skip that. But important landform associated with volcano. देखें, landform is there. Important landform associated with volcano means, say for example, due to the eruption of the volcano, the magma will solidify and magma will form different kind of the landforms. It may be a volcanic ponds in the form of the volcanic mountains, na? Crater it may be forms. ठीक है, different landform means here we can also, hot springs are there, geysers are there, this all come under landform associated with the volcanoes. ठीक है, then third, fourth most important, that is your world volcanic distribution. This is most important. This is most important because both for prelims and the mains, prelims and the mains के लिए आता है, लेकिन for mains it is very very important. आपको volcanic distribution of the world को आपको बताएगा, with the diagram आपको draw करता है, 5, 10, 15 मार्क तक भी आ सकता है और बहुत रेगुलर आता है आपको। ठीक है, अर्थक्विक के लिए भी सेम डायग्राम रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्विक बोलने से भी यही डायग्राम बनाना है, यही स्टेटमेंट लिखना है, यही परसेंटेज डालना है। से फॉर एग्जांपल सर्कमपेसिफिक 60%, मिड ओशनिक कॉन्टिनेंटल बेल्ट 20%, ठीक है, मिड ओशनिक रिजेस 15% एंड हॉट स्पॉट 5%. दिस इज ऑलमोस्ट सेम फॉर द अर्थक्विक एज वेल. So these are the important topic that we are going to cover under the volcanoes. Are you clear about this? So you first tell me, what do you understand by the volcano? Volcanism, you must have some confusion, but volcanism is not that important, but just I'm asking you, what do you understand, your basic understanding about the word volcano? ये कुछ अलग से बोलता है, लेकिन मतलब नज़दीक आसपास तो रहता है लेकिन थोड़ा उसका अलग होता है, इसलिए इसको सबसे पहले यस वेरी क्लोज। हाँ, आपको भी पता है ना मतलब आपको सब पता है, बस वर्ड में डालना है. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन द मेंस एग्जामिनेशन. यू नो द थिंग्स बट यू आर अनएबल टू पुट इन टू द वर्ड इन द पेपर. ये सबसे प्रॉब्लम है बस. लेकिन ये कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस से आपको आ जाता है. जैसे कि हम लोग के दिमाग में क्यों बैठता है, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस है आपका. ठीक है, एनीवे दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग वी विल डिफाइन टू वोल्केनो ना. तो द मैकेनिज्म ऑफ द वोल्केनो आप लोग को थोड़ा बहुत पता है. प्लेट टेक्टोनिक्स वी हैव स्टडीज, convectional current we have studied. Now with confidence you can say that the magma that are coming on the surface of the earth is they are coming from the asthenosphere और nearby it, वहाँ से आ रहा है, इतना तो आपको पता है. ठीक है, तो therefore what happen say for example this is your any plates,
any plate, maybe continental plate, maybe oceanic plates, ठीक है. Beneath this at certain depth, say for example 200 kilometer depth, what we have here, we have magma, or this is known as your asthenosphere. We call it as a asthenosphere, and this यहाँ से यहाँ तक it is lithosphere, and only this part it is known as crust. ठीक है, means lithosphere consists of your upper part of the upper mantle and the crust together is known as the lithosphere. Crust is just this one. ठीक है. Now what happened when the magma volume increases? The volume of the magma may increase when your one plate goes subduct below 200 kilometer. It will melt and it will increase the volume of the magma. That could be the one of the reason for increasing of the volume in the asthenosphere that we have known. ठीक है. Now what happened if magma have to come out on the surface of the earth? First of all, there need to be some crack, weak point, or some opening, bend. So therefore, say for example, if this is the bend, ठीक है, magma have to come on the surface. Now what happened if it is the weak point or a opening, then magma will start flowing here. इस तरह से वो सबसे weakest point से आने के लिए करेगा. Now this magma will go. However, before reaching on the surface of the earth, there might be some other weak point over here. यहाँ side सब जगह पे भी तो weak point हो सकता है ना. So therefore, the magma first will try to escape from here, escape from here, escape from here, escape from here, and in the process, the magma will solidified here. After reaching here, it will solidified. At the end, the left out magma, it will come out on the surface of the earth like this, isn't it? Getting my point? Now this will come on the surface of the earth and it will solidify and form a kind of the, depending on what kind of the lava it is, whether it is acidic lava, whether it is a basic lava, they will form different structure on the surface of the earth. Are you clear about this? Now what is a volcano? If asked, volcano is a simple thing. Volcano simply means it is an open or a bend on the surface of the earth through which the molten magma come out on the surface of the earth and solidify. That is the definition of the volcano. But when we say volcanism is the whole process that involve right from the melting of the magma inside the earth. Nah, the magma melts means some plates may go deep and melt, and the concentration of the magma, volume of the magma may increase, pressure increase, and it will goes up. Some magma will solidify here, intrusive, and form an intrusive landform. Some magma will deposited in the earth crust itself. They will not go outside, and they will solidify in the inside. We call it as a intrusive landform. And some magma, they will come on the surface of the earth, okay, and form extrusive landform. Extrusive landform may be a volcanic mountain, volcanic plateaus, etc. Getting my point? This whole process, starting from the magma inside the earth, coming out in the midway, forming a solidified intrusive land inside the crust, coming on the surface of the surface on the earth and solidified and form extrusive landform. This whole process is known as your volcanism. Are you clear about this? Nothing difficult, simple. Okay? So that is volcano and volcanism. Now next thing we have to study is that when volcano erupts, when it come out on the surface of the earth, what more things are coming out? It is not the only molten magma which come on the surface of the earth. There are other materials as well. For example, what called volcanic ashes is there. Small pebbles are thrown out at a very speed,
ठीक है, bold stones are thrown out, gases are thrown out, waters are thrown out. These all are known as the constituent of the volcanic eruptions that we have to study. Secondly, ठीक है, तो second is we will study the volcanic constituent of volcanic eruptions. Are you clear? Or else you write a few words first. आगे ये लिख लिया, क्या क्या पढ़ाई करना है ये लिख लो एक बार. अभी ठीक है स्पीड ना. उस दिन का थोड़ा नर्वस से ज़रा फास्ट हो गया था. फर्स्ट रिकॉर्डिंग है ना, इसलिए अभी थोड़ा स्लो कर देंगे, ज़्यादा नहीं, और 2 क्लास. सो राइट डाउन, वोल्केनो इज ए बेंट or an opening on the surface of the earth, through which the molten rock materials, the molten second is your constituent of volcanic eruption, constituent of volcanic eruptions. What are the materials or objects that are coming out during the volcanic eruption? So we have the 3 important materials, constituents. Number 1 is your water vapor. It will always come, and along with water vapor we have the gases as well. ठीक है. Number 2 is your lava, or we call it as a magma. ठीक है. Third thing is your proclastic material. Proclastic material, or proclastic material means, or we can say volcanic ashes. काला काला सा धुआं से, अब जब वोल्केनो आसपास में देखो काला काला धुआं सा निकलेगा. ठीक है. वोल्केनिक एसेस, योर डस्ट, पेबल्स एक्सेट्रा, ये सभी, दिस आर द 3 थिंग्स दैट विल कम आउट व्हेन द वोल्केनो इरप्ट्स. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग योर वाटर वेपर गैसेस, देन लावा एंड मैग्मा. यहीं से आपको क्वेश्चन आएगा. ठीक है. Now water vapor you already know, when the water comes in contact with the very hot lava, na, it will just evaporate, it will just come out in the form of a hot stream, ना, hot stream का form में आएगा. So बस ये इतना काफ़ी है. ठीक है. Now gaseous बोलेगा तो gaseous में we have the very important role play by the gaseous that comes from the volcanic eruption, because when volcanoes comes out, वहाँ से जो gaseous निकल रहा है, they will also up to some extent determine the climatical region or the weather of that area. It may result into the what called pollution करा देता है, pollute करा देगा आपको. ठीक है. तो gases का constituent आपको थोड़ा हल्का सा मालूम होना है. ये आपका जनरल साइंस में भी पूछ लेगा, इसलिए we will see. तो फर्स्ट इज योर वाटर वेपर. सेकेंड gaseous में बोलेगा the most important gaseous that comes out during the volcanic eruption is your number 1 sulfur oxide, yes, sulfur dioxide. Anyway, so I will write it as sulfur oxide, that is SOX. 2 डाल देगा तो sulfur dioxide होगा. ठीक है. तो remember whenever a rock breaks, rock जो पत्थर रहता है, we will study the rock in coming days. rock मतलब क्या है? rock have most important constituent of the rock is the sulfur only. When any rock breaks, the sulfur content dissolve. sulfur content वहाँ सबसे ज़्यादा होता है. getting my point? तो therefore जब volcanoes होगा तो the large amount of this sulfur oxide will release. getting my point? Now you have to know a little property about the sulfur oxide. Sulfur oxide, then we can have carbon oxide या carbon dioxide, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO. ठीक है. नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और दी नाइट्रस ऑक्साइड NOx. देन ए लिटिल अमाउंट ऑफ
मीथेन एज वेल, CH4. These are the important constituent gaseous में. Getting my point? Now you have to also know out of this, when volcanic eruption जो गैस निकलता है उसमें आपको ये मालूम होना है कि ये गैसेस का थोड़ा प्रॉपर्टी आपको मालूम होना है. Then you will able to write about the effect of volcanic eruptions. Otherwise मेंस में आप नहीं लिख पाएगा. तो इसीलिए what is the sulfur oxide? You have to know, you have to determine whether these gases has greenhouse gases or not, whether these gases are pollutant or not, whether this gas can cause a acid rain or not. These three parameters you have to know. Then only you will be able to write in the effect of volcanic eruption in the climate, in the global level. Are you clear about that? नहीं तो आप लिख नहीं पाएगा. तो therefore सल्फर ऑक्साइड जब हम लोग बोलता है, सल्फर ऑक्साइड इज इट द ग्रीन हाउस गैस? नाउ व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस? एनीवन? जो टेम्परेचर राइज कराता है ये बोल रहा है कि उसको ग्रीन हाउस गैस बोलता है. वेरी गुड, यू आर वेरी नियर टू द आंसर. हाँ, आपका जो टेम्परेचर डिक्रीज कराता है, बोलो. जो इंक्रीज कराता है. हाँ, तो ऑलमोस्ट एवरीबडी एग्री दैट दोज गैसेस विच रिजल्ट इनटू द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस. बट दिस इज नॉट द what called scientific definition of the greenhouse gas. Greenhouse gas simply means that those gas which have the ability to trap the heat. The word you should use is the trap the heat. Trap heat करेगा तभी तो increase होगा. Of course the result is the increase of the temperature. उसका resultant ना. लेकिन property क्या है बोलने से, the property of a gases to trap the gas, to grab the heat. Say for example carbon dioxide. It have the ability to increase the temperature, isn't it? It have the ability to trap the heat. So therefore, we have no doubt sulfur dioxide is a greenhouse gas. It is a greenhouse gas. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको मालूम भी नहीं है ये ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, देन यू शुड नो कि सल्फर डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस. अभी आप आराम से बोल सकता है व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इन द क्लाइमेट. If there will be more volcano, the temperature will increase because we have the gases which can trap the heat. Are you clear about this? So greenhouse gas. Now second question is it pollutant? Pollutant. Carbon dioxide, is it pollutant? What is a pollutant? Pollutant in a very layman term I can define like this: those gaseous which make us feel sick, choking type होता है, प्रॉब्लम होता है करने में, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है, वो सबको हम लोग पोल्यूटेंट बोलेगा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो सल्फर इज सच अ गैस, अगर आप उसको लेता है तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को इमीडिएटली आपको बिगाड़ देगा, आपका हेल्थ इमीडिएटली डिक्रीज कर देगा, प्रॉब्लम करा देगा. ठीक है, तो देयरफॉर सल्फर डाइऑक्साइड इज ए पोल्यूटेंट. इट इज ऑल्सो ए पोल्यूटेंट. Carbon dioxide, is it pollutant? Carbon dioxide is not a pollutant because carbon dioxide तो अभी हम लोग सब एक दूसरा का कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है कि नहीं? आपका भी हम ले रहा है, आप भी मेरा ले रहा है, मेरा तो ज़्यादा ही ले रहा होगा. ठीक है, तो देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग नहीं होता है, कुछ हम लोग को इफेक्ट नहीं आता. हाउएवर दैट इज डिफरेंट थिंग कि आप बोलेगा सर एक रूम भर्ती करके पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भर्ती कर देगा, तो वो तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन ना. क्योंकि एक्सेस में लेगा तो कोई भी चीज़ खराब हो, पानी भी आपको पिलाते रहेगा तो वो तो मर ही जाएगा. सो देयरफॉर इन ए नॉर्मल टर्म द कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ए पोल्यूटेंट because it in fact it help us in many ways. Getting my point? So therefore sulfur dioxide is a pollutant. Thirdly, does this sulfur or sulfur dioxide or sulfur oxide causes acid rain? एसिड रेन कोज करता है कि नहीं करता? नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसिड रेन. ठीक है, व्हाट इज द एसिडिटी, व्हाट इज योर वेसिडिटी, या तो वेसिक क्या है. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ व्हाट हैपन, द एसिडिटी और द वेसिसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन कैन बी मेजर विथ ए स्केल नोन एज pH, पोटेंशियल हाइड्रोजन
समथिंग कुछ बोलते हैं, पीएच वैल्यू के बेसिस में ये मेजर करता है आपका। गेटिंग माय पॉइंट। इफ सॉल्यूशन का वो आपका इंस्ट्रूमेंट है, मेजर कर लेगा, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अगर ये क्या बोलता है पीएच वैल्यू इज लेस देन ऐसा होगा ना, लेस देन 7 होता है तो हम लोग बोलेगा दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक इन नेचर होता है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? 7 का बी, 7 इज ए न्यूट्रल पॉइंट, बीच वाला। 7 से मोर देन 7 होता है पीएच, मोर देन 7, तब उसको हम लोग क्या बोलेगा, बेसिक या तो बेसिडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। आर यू क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन में अगर पीएच वैल्यू पोर से पाइप लेवल तक रहता है जनरली पीएच वैल्यू, तो वो हम लोग को उसको हम लोग क्या बोलेगा, एसिड रेन बोलता है। गेटिंग माय पॉइंट? उसका पीएच वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? देयरफॉर एसिड रेन, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्यूशन हियर व्हाट इज ए योर सॉल्वेंट, जो बारिश आ रहा है दैट इज योर नॉट सॉल्वेंट, इट इज ए सोल्यूट बोलता है जिसको, जो बारिश आ रहा है, बारिश इज ए सोल्यूट, ठीक है। नाउ दिस सोल्यूट विल मिक्स अप विद द सल्फर ऑक्साइड व्हिच इज present in the atmosphere due to the volcanic eruption. It will combine with the sulfur dioxide and form a solution which is acidic in nature, extremely acidic in nature. Now when this solution which is acidic, it falls on human being, it falls on the flora and fauna, it may give a adverse effect. जैसे कि हम लोग को कोई बीमारी करा सकता है, मछली या जानवर को बीमार करा सकता है, प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो देयरफॉर हम बोलेगा सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेस एसिडिक रेन। गेटिंग माय पॉइंट? जो आपका ताजमहल है, ताजमहल का पहले आसपास में बहुत सारे फैक्ट्रीज हुआ करता था ना, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये निकलता था ये इंडस्ट्री से, तो वहाँ पे पूरा क्लाउड में जमा हो गया। जब बारिश आता है तो वो पानी सोल्यूशन बन के ताजमहल के ऊपर में गिर जाता है, तो ताजमहल पूरा ब्लैक होना शुरू हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर जारी करके उसका आसपास में अभी फैक्ट्रीज वाला को हटाने के लिए ऑर्डर दिया है। क्लियर अबाउट दिस? तो देयरफॉर सल्फर डाइऑक्साइड और द एसिड रेन ऑल्सो cause destroy the infrastructure as well, monuments as well. Are you clear about this? So this is over. So therefore it also causes acid rain. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Second is your carbon dioxide. Is it greenhouse gas? Yes, it is greenhouse gas, no problem. Is it pollutant? It is not a pollutant. आपको क्वेश्चन आता है which of the following gas is a pollutant बोल के क्वेश्चन आएगा. ये चारों का दे देगा आपको. तो ये चारों में पोल्यूटेंट नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही पोल्यूटेंट नहीं है, बाकी सब पोल्यूटेंट है आपका. आर यू क्लियर अबाउट दिस? Does it cause acid rain? No, it does not cause no acid rain ना, बस ये दोनों है. Now कार्बन मोनोऑक्साइड, is it greenhouse gas? Yes, कोई भी कार्बन मतलब बेसिकली काला ही हो गया, वो तो हीट ट्रैप करेगा ही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर वेयरिंग ए ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, द ब्लैक कलर है इटसेल्फ हैज ए प्रॉपर्टी टू ट्रैप द हीट ना. तो विंटर में हम लोग काला कपड़ा क्यों पहनता है? क्योंकि काला कपड़ा जल्दी गर्म कर देता है, हाय इजंट इट. और समर में हम लोग वाइट कपड़ा क्यों पहनता है? बिकॉज रिफ्लेक्ट कर देता है, जो भी इंसोलेशन आ रहा है, लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो हम लोग को थोड़ा ठंडा महसूस होता है. एनीवे, तो इट इज़ नॉट ए पोल्यूटेंट. एंड इज इट ए एसिड रेन? नो, सॉरी. कार्बन मोनोऑक्साइड, इज इट ग्रीन हाउस गैस? यस, इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस. प्लस इज इट ए पोल्यूटेंट? Yes, it is a pollutant because carbon monoxide has a high binding capacity. जब आप उसको लेता है तो it has the ability or the capacity to displace the oxygen from your blood. Getting my point? तो आपको immediately आपको कुछ प्रॉब्लम करा देता है. तो हाई बाइंडिंग कैपेसिटी, नॉट डिस्प्लेसमेंट, बाइंडिंग कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन का साथ में, ठीक है. तो देयरफॉर इट इज़ ए पोल्यूटेंट. इट इज़ ए पोल्यूटेंट. एसिड रेन कॉज करता है, ये करता है. इसको एक बार चेक करना. आई एम नॉट वेरी श्योर एसिड रेन करता है कि नहीं करता है. लास्ट, नाइट्रस ऑक्साइड.
इज इट ग्रीन हाउस गैस? है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्लस इज इट पोल्यूटेंट? यस, ये पोल्यूटेंट है, प्लस एसिड रेन, यस एसिड रेन। जो व्हीकल्स वगैरह से जो निकलता है सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, इट कॉज एसिड रेन। मीथेन ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, पोल्यूटेंट, ठीक है। सो राइट डाउन, ठीक है। थर्ड, पायरोक्लास्टिक में कुछ नहीं है। पायरोक्लास्टिक सिंपली मीन्स जो एशेस निकलेगा, जो डस्ट पार्टिकल्स निकलेगा, जो स्मॉल फेबल्स ना, जिसको हम लोग बोलता है वोल्केनिक बम बोलते हैं, बम, वो सब निकलेगा, फेबल्स निकलेगा, वो सब पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर लावा एंड द मैग्मा। कैन आई रफ स्पीड? कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर से मिले हैं, कार्बनिक एसिड से बने। क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड जो, हाँ, इसका साथ वाटर का साथ मिलने से कार्बनिक एसिड से बने। लेकिन अब ज़्यादा लेने से तो होगा ही है, वो तो दारू आप इतना लियो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 70 ईयर्स तक जिएगा। लेकिन अब 2 बोतल खंबा हर रोज देगा तो वो तो खत्म ही हो जाएगा ना, नहीं होगा ना, ठीक है। सो जस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड इज डज इट कॉज एसिड रेन और नॉट? मेरा ख्याल से तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड रेनफॉल नहीं फॉर्म करता है, इट डज नॉट फॉर्म एसिड रेन, ठीक है। एनीवे, ठीक है। कैन आई रब? सेकेंड constituent is your lava or the magma na? Now you to come to know what is a lava. It is a molten rock materials na, molten magma. That is magma matlab when this molten rock materials is inside the earth na, beneath the earth surface, we call it as a lava, we call it as a magma. When it comes on the surface of the earth, we call it as a लावा ना। जब तक नीचे में है हम उसको मैग्मा बोलते हैं, जब बाहर आ जाएगा तो लावा बोलते हैं। तो उसको हम लोग एक साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर लावा और द मैग्मा। यू ऑलरेडी नो इट इज कमिंग आउट। हाउएवर व्हाट वी हैव टू स्टडी हियर इज द डिफरेंस ऑफ द लावा। लावा में भी जो नीचे से आ रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। सो सम लावा इट में भी है एसिडिक लावा, और कोई हो सकता है बेसिक लावा, डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ से निकल रहा है, उसका अंदर में क्या कंटेंट है, गेटिंग माय पॉइंट, प्रेशर, ये सब का बेसिस में वी कैन डिवाइड द लावा इनटू 2 टाइप्स। वन इज नोन एज द एसिडिक लावा, एसिडिक मैग्मा या तो एसिडिक लावा, एंड सेकेंड इज योर बेसिक लावा। इंपॉर्टेंस बोथ प्रीलिम्स एंड द मेंस, आपको ये दोनों का डिफरेंस जानना पड़ेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको मालूम हो जाएगा ये बेसिक लावा है या एसिडिक लावा है, हम लोग बाद में जब रॉक वगैरह करेगा, से फॉर एग्जांपल कोई रॉक है, ये रॉक में क्रिस्टल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्रिस्टल, यू नो दिस क्रिस्टल्स जो ग्रेनाइट ये लोग में रहता है, छोटा छोटा क्रिस्टल, ये क्रिस्टल विल इट डेवलप क्रिस्टल, विल द साइज ऑफ द क्रिस्टल बी लार्ज और स्मॉल, ठीक है, फेबल, दैट ऑल डिपेंड ऑन दी व्हाट काइंड ऑफ द लावा इट इज, टाइप्स ऑफ द रॉक, तो उसमें हम लोग करेगा। एनीवे, सो देयरफॉर एसिडिक लावा का मतलब है नंबर 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग को देखना है, देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन। एसिडिक लावा मीन्स दोज लावा विच कंटेंट more silica content is more as compared to the iron. We are just comparing 2 minerals here, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब को हम लोग छोड़ रहे हैं, only we are comparing with 2 minerals, that is your silica and the iron, because this play very important role. तो in acidic lava it will contain more silica and less iron. Are you clear about this? Silica is a lighter, it will result into the lighter color of the magma, ठीक है, because of the abundance presence of the silica, the color of the lava will be little lighter,
ये थोड़ा लाइटर कलर का होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। इसका जगह में बेसिक लावा में, इन बेसिक लावा दी मोर आयन कंटेंट इज मोर एंड सिलिका कंटेंट इज less. Since iron is more, the color of the iron will, this presence of the iron will result into the darker color. इसका कलर डार्कर होगा। फॉर एग्जाम्पल द लाइटर कलर का आपको जो मैग्मा निकला है बाहर, लावा सॉलिडिफिकेशन का बाद अगर वो एसिडिक लावा है, it will result into a igneous rock known as the ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होगा। ग्रेनाइट इज लिटिल बिट लाइटर। अगर आप देखिएगा तो अभी ये बाहर जा रहा है, अब हमारा सीरी में है वो ग्रेनाइट होगा, या तो हमारा किचन का जो स्लैब बनाया है वो क्या है आपका, मतलब ब्लैक है लेकिन उसमें बड़ा बड़ा क्या है आपका, ये भी है क्रिस्टल, बड़ा बड़ा क्रिस्टल होता है ना लाइट कलर का, वो पूरा क्या है, दिस इज अ ग्रेनाइट। वो दिस इज रिजल्ट ऑफ द एसिडिक लावा। लेकिन ये जो बिल्कुल ही डार्कर कलर के, बहुत डार्क कलर है, स्पेशली आप कहाँ पे देखिएगा, कोई घर का बाहर में छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके ब्लैक कलर का ऐसे ऐसे टाइल्स जैसे रखता है ना, वो आपका क्या होता है, दैट इज योर बसाल्ट, ग्रेनाइट बसाल्ट, वो बसाल्टिक रॉक्स है वो, जो बहुत कलर डार्कर कलर का रहता है। ग्रेनाइट में थोड़ा से बसाल्टिक से थोड़ा लाइटर कलर का होता है, वो आपका क्या होता है, ग्रेनाइट। ये बस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। नंबर सेकेंड, एसिडिक लावा इज हाईली विस्कस। विस्कस का मतलब, विस्कोसिटी मीन्स व्हाट इज ए विस्कोसिटी? विस्कोसिटी मतलब मतलब वायलेंट हो गया ना। विस्कोसिटी, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड विस्कोसिटी? विस्कोसिटी मतलब इफ आई सपोज करो, इफ आई थ्रो ए वाटर एंड द हनी, पानी और हनी को एक ग्लास थ्रो करता है, विच विल स्प्रेड क्विकली, वाटर विल स्प्रेड क्विकली एंड द हनी विल नॉट स्प्रेड वेरी क्विकली, बिकॉज उसमें क्या है आपका चिपचिपापन ज़्यादा है। तो हम लोग बोलेगा द शुगर हैव मोर विस्कोसिटी, इट इज़ विस्कस इन नेचर। वाटर इज मोर क्या बोलेगा, फ्लूइडिटी, उसमें फ्लूइडिक नेचर ज़्यादा है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो व्हेन आई से एसिडिक लावा इज विस्कस, इसका मतलब है कि वहाँ पे उसका चिपचिपाहट ज़्यादा है, अटैचमेंट ज़्यादा है, ठीक है। लेस विस्कस मतलब फ्लूइडिटी कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एसिडिक लावा इज वेरी विस्कस इन नेचर। When it is viscous in nature, it means that when the lava come on the surface of the earth, it will flow very slowly. Slowly flow होगा कि नहीं होगा, because viscous in nature है। It will flow very slowly and it will not travel for a longer distance and it will solidify, because speed of the traveling of the lava is very slow and it will solidify. So therefore, it goes on. First eruption, second eruption, it will goes on this and it will solidified, it will not move far away. Therefore basically it forms a volcanic mountain which will have a greater height. Are you clear about this? It will have a greater height. However, in case of the basic lava, they are not very viscous, so therefore when the lava came out on the surface of the earth, within a short period of the time, because of the fluidity or the less viscous, it will travel to a longer distance. Second volcanic eruption, third volcanic eruption, and it will not exactly form a mountain, but it will be more like a plateau. Are you clear about this? So therefore basic lava resulted into the formation of the plateau, or we can say sealed volcanic structure. We call it as a composite volcanic structure. इस तरह का, more popularly we have this one.
दैट वॉल्केनिक रीजन्स ना, जो वॉल्केनो हमने स्टडी किया था कहाँ कहाँ पे था. फॉर एग्जांपल कोटोफैक्सिस हो गया, माउंट अकाउंटक्वा हो गया, गेटिंग मैं पर शास्ता हो गया, उड हो गया, रेनियर हो गया, ठीक है, फुजियामा हो गया, ठीक है. दिस ऑल आर दिस एसिडिक लावा का बना हुआ है. यहाँ का देयर आर फ्यू एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल हवाई आइलैंड इज मेड अप ऑफ द कंपोजिट, मेड अप ऑफ ए बेसिक लावा, ठीक है. रीयूनियन आइलैंड इज मेड अप ऑफ ए बेसिक लावा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो ये कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया. आर यू क्लियर अबाउट दिस? नॉर्मली the acidic lava is associated with the violent eruption. ये violent eruption से रिलेटेड करता है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? और यहाँ पे फिजर होगा, धीरे से निकलेगा, फिजर इरुप्शंस. ये लिक्विडिक है, फ्लूइडिक है, तो आराम से धीरे से निकलेगा. ये क्योंकि क्या है आपका, ठीक है, मोर विस्कस है, तो ये जब निकलेगा तो बहुत वायलेंट होता है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो दिस आर दिस सम एग्जाम्पल. ऐसे मत लिखो, हम लिखाएगा अच्छे से, डिटेल में लिखाएगा, जस्ट आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो जस्ट राइट डाउन, एक दो ये बना दो, डायग्राम बना दो, ये बना दो. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है. कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये क्यों बहुत विस्कस है, क्यों ये फ्लूइडिक है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है दिमाग में, तो नहीं आ रहा है तो अब नहीं भी बताएगा ना. आना चाहिए एक्चुअली आपको. फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी व्हाई एसिडिक लावा इज मोर विस्कस, व्हाई बेसिक लावा इज नॉट विस्कस. ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले आना चाहिए था. तो एनीवे नहीं पूछेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट डाउन. 2 पैराग्राफ बनाया, राइट डाउन. एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद द वोल्केनो ना. important landform associated with the volcano. Yes. Violent eruption और silent eruption क्या रीजन? क्या reasons? Very good. कुछ तो पूछा है. Now you tell me. You only tell me. If this is a continental plate, and this is oceanic plate ना, it will go down, deep down, collision हो रहा है, यहाँ पर collide हो रहा है, ठीक है. and after going around 200 kilometer this will melt, resulted into the increasing of the volume of the volcanoes, ठीक है. now if the volcano have to come on the surface of the earth, the volcano have to break all these. 40 किलोमीटर हो सकता है ये. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का किलोमीटर कितना होता है? फ्रॉम 8 to 40 किलोमीटर का बीच में रहता है. इसमें भी 50 किलोमीटर. तो 40-50 किलोमीटर को अगर तोड़ के ये बाहर निकलना है, देन इट नीड ए ह्यूज प्रेशर. इतना ह्यूज प्रेशर होना है. तो जब पूरा ह्यूज प्रेशर का साथ जब आ रहा होता है तो निकलेगा तो वॉयलेंट ही तो होगा, भाग निकलेगा, है कि नहीं. लेकिन ये हो गया कॉन्टिनेंटल ओशनिक, ये हो गया. और इन केस ऑफ कन्वर्जेंट होना पड़ेगा. आर यू क्लियर अबाउट दिस? नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल. इफ देयर इज अ 2 कॉन्टिनेंट, मे बी ओशनिक, जनरली ओशनिक में ही होता है. ये हो गया. Now the direction of the magma or the direction of the convectional current is this. Direction of the convectional current is this way. For example, it is the limbs of a convectional current is divergent. दोनों एक दूसरे से अलग जा रहा है. Are you clear about this? अलग जा रहा है. अभी क्या होगा? ऑलरेडी मान के चलो कि ओशन में है, ऑलरेडी इसका क्रस्ट जो पतला है, नंबर 1. नंबर 2, क्योंकि ये डाइवर्जन करा रहा है तो क्या होगा कि दोस्त यहाँ डाइवर्जन हो रहा है, मतलब हियर नो एनी इंक्रीज ऑफ द मैग्मा. इंक्रीज ऑफ द मैग्मा हैपन ओनली व्हेन योर क्रस्ट गो डाउन, देन द प्रेशर विल इंक्रीज. हियर नथिंग सच इज हैपनिंग बिकॉज इट इज नॉट
subducting, they are going apart from each other. So therefore there is a no case of increase of the magma here, no case of the increase of the pressure, first of all. Secondly, it is going apart. So therefore this going apart is already ना giving you a weak point. आपको मेहनत करना नहीं पड़ रहा है. तो therefore the volcano which will come out here will very आरामली it will come, very आरामली it will come, आसान से निकलेगा. तो it will be a fissure eruption, it will be a silent eruption. Got? Violent कब होता है, साइलेंस कब हो सकता है? बुझी? तो सर हाँ। बेसिक लावा का कैरेक्टर ये होगा, ओशनिक हाँ ये Okay, sir. In case of basaltic lava, basic lava what means? बेसिक लावा क्या है? बेसिक लावा कॉन्टिनेंटल और हाँ ओशनिक जो दोनों का कंडीशन होगा, तब अगर वो बेसिक लावा है वो वायोलेंटली गिराते हैं अपना बॉडी स्लोली होता है. इन केस हाँ इन केस अगर वो जो कॉन्टिनेंटल और ये ओशनिक दोनों का प्लेट में टक्कर मारे तो वहाँ से बेसिक लावा निकल रही थी, तभी भी वायलेंट नहीं ना. नहीं ऐसा है. हाँ अब वी आर डिस्कसिंग अबाउट द, इसका पूछना है कि वायलेंट कब होता है और फिजर का ये है. तो वायलेंट होने के लिए फर्स्ट वाला डायग्राम और ये होने के लिए साइलेंट होने के लिए ये वाला डायग्राम. नाउ दी लावा क्या होगा वो तो उसका मिनरल कंटेंट पे डिपेंड है. यहाँ पर भी एसिडिक हो सकता है, यहाँ पे भी बेसिक हो सकता है, वो सिर्फ मिनरल कंटेंट पे डिपेंड है. लेकिन जनरली समुद्र के अंदर ये वाला पार्ट में आपका बेसिक लावा ही निकलता है जनरली. वो कहने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं वॉयलेंट कब होता है और फिजर कब होता है. बुझी? ठीक. तो नाउ दिस पार्ट इज ओवर. नाउ नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म्स. इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म्स तो इसमें हम लोग फिलहाल के लिए थोड़ा सा एक चीज़ को स्किप करेगा, आप लोग याद भी नहीं कर पाएगा उसको. ठीक है. तो व्हेन वोल्केनोज फ्रॉम द मैग्मा फ्रॉम द, दिस इज सपोज योर लैंड फॉर्म. ठीक. हियर वी हैव द मैग्मा astronosphere. It is your, say for example, lithosphere or the crust, anything. ठीक. When it goes, when it's coming up, when it is coming up from a weak point, the first thing is that it will search for a weak point in the beneath the earth itself. So therefore it will go to the weaker section, weaker points, and it will flow here and it will solidified. It will go here, it will solidified. Again it will go up here. weak point इस तरह से हो सकता है, ऐसा आ सकता है, फिर ऐसा हो सकता है. It may be like this. Getting my point? इस तरह अलग अलग शेप, मतलब irregular shape. Some of the shape name has been mentioned, names has been given by the scholars ना. कुछ बोला है पोकोलिट है, कुछ बोला है लोकोलिथ है, कोई बोला है बेटोलिट है, अलग अलग नाम दे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सबसे बड़ा सा यहाँ पे आगे यहाँ पे जो है बैठा हुआ है सेटल डाउन सॉलिडिफाई, उसको बेटोलिट बोल दिया, पोकोलिट बोल दिया, लेकोलिट बोल दिया, अलग अलग नाम दिया हुआ है. ठीक है. फिर किसी को डाइक नाम दिया है, किसी को सिल्क नाम दिया है. इसके बाद में इट विल कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. तो दोज फीचर्स लैंड फॉर्म्स formed due to the solidification of the volcano inside the lithosphere or inside the crust, they are known as the intrusive landform. Intrusive अंदर में, intrusive मतलब अंदर में, ये अंदर वाला landform है, which is basically not important for us. ज्योग्राफी में अभी के लिए हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है. थोड़ा नाम भी मुश्किल है याद करने के लिए, तो अभी फिलहाल के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्किप कर सकता है. बेटोलिट, पोकोलिट, लोकोलिट, और इतना आता भी नहीं है ये जगह. जब हम लोग ऑप्शनल लेता था तो ऑप्शनल में हम लोग इसको पूरा याद करता था. तो अभी जीएस का क्लास में आपको ये सब को इतना रत्ता मारते बैठेगा तो आपका ये नहीं बैठेगा, मतलब वैल्यू इतना नहीं है. इससे अच्छा है आप
बाहर का, तो बाहर में व्हेन इट कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट विल अगेन फॉर्म ए डिफरेंट काइंड ऑफ द लैंडफॉर्म. द फर्स्ट लैंडफॉर्म इज योर वॉल्केनिक माउंटेन. नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ द लावा इट is it a acidic lava or is it a basic lava? If it is acidic lava, then definitely it will form a higher elevation landform in the form of the volcanic mountain. If it is a basic lava, it will form a plateaus. Are you clear about this? So therefore we have to study the mountains or the landform formed by the volcanic eruption on the surface of the earth. मीन्स हम लोग को एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म को करना है मोर इम्पोर्टेंटली. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो इन एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म में वी विल सी कि व्हेन दिस कम्स आउट तो ये किस किस तरह का माउंटेन्स वगैरह बनाता है. ठीक है, सो राइट डाउन इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट नंबर वन इज योर composite cone or volcanic mountain. ठीक है. composite cone और volcanic mountain. ठीक है. नाउ वेरी सिंपल, जस्ट देखना है क्या वही सेम ही चीज़ है. व्हाट हैपन, दिस इज योर लैंड सरफेस. फर्स्ट वोल्केनोस विल कम आउट. इस तरह से वोल्केनो आ रहा है, यहाँ से वोल्केनो इज कमिंग आउट. फर्स्ट इट विल डिपोजिट प्रोक्लास्टिक मटेरियल्स. प्रोक्लास्टिक मटेरियल मतलब क्या है? व्हाट इज अ प्रोक्लास्टिक मटेरियल? इट इज अ डस्ट, volcanic ashes, small pebbles, stones, it will deposit it here. Then the molten magma will come out. Molten magma यहाँ पर जमा हो जाएगा. This way molten magma will come out and it will solidified like this. This is the first eruption. Remember volcano, once it erupt, from time to time it goes on eruption. ठीक है, getting my point? Then after some time, then again pressure will generate and again proclastic material will be erupted. इस तरह है, फिर से proclastic material will deposit it here. Then the magma will come out and then magma will again solidified here. इस तरह से the magma will solidified again. And this process will goes on repeating until the volcano inside the earth have the energy. ना जब तक उसका साथ एनर्जी है वो इरुप्शन करते रहेगा और इस तरह से वो माउंटेन फॉर्म होगा. इस तरह से दिस इज नोन एज द कंपोजिट कोन. कंपोजिट कोन हियर मीन्स ए लेयर अपॉन लेयर. The volcanic material is deposited and it is layered by a volcanoes. This type of the mountains, they are known as composite cone or volcanic mountain. Are you clear about? बस इतना आपको जानना है. All the important mountains that we have studied earlier, they all comes under the composite volcanoes. तो we will start from यहाँ ये लिख लेगा, इसके बाद हम लोग लिखेगा कहाँ कहाँ था, सबका नाम देगा. एंड दैट इज़ द ओनली इम्पोर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड जो हम अभी ना आप लोग को देगा नाम. ठीक है, सो फर्स्ट राइट डाउन हियर. दीज आर मेड अप ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ broken rock materials. These are made up of alternate layers of broken rock materials and lava. Full stop. The lava after solidification act like
act like cementing material which make this cone as highly resistant to erosion, and hence they are the highest mountains of the world. They are the highest mountains of the worlds. ठीक, फ्रेगमेंटेड रॉक्स, उसको सीमेंटेड किया है आपका लावा. यू कैन थ्रो दिस डायग्राम एंड यहाँ पे यू कैन राइट लाइक दिस फिगर बोल के. हमेशा दिस इज द प्रॉपर वे, कंपोजिट वोल्केनो या तो कंपोजिट कोन और द माउंटेन. दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ ड्राइंग. Write down the important composite cone of the world are. The important composite cone or the volcanic mountains of the world are. आप बताते जाइए. We have already studied. कहाँ से शुरू करेगा हम लोग? We will start with नॉर्थ अमेरिका से शुरू करता है ना. तो यू टेल मी, नॉर्थ अमेरिका में आपने क्या क्या देखा? विच माउंटेन वी हैव सीन? Rockies is a fold mountain. It is a Rockies is a, ठीक है, it is a parallel fold mountain. It is not a peak. और वोल्केनो से नहीं बना है, वो फोल्डिंग से बना हुआ है. एक भी याद नहीं है क्या? अरे माउंट वुड याद है? हाँ. और माउंट शास्ता याद है? नॉर्थ अमेरिका खोलो. अरे भाई एग्जाम 15 को है, आप लोग अभी माउंट वुड मालूम नहीं है. कैसे क्रैक करेगा? हाँ? हाँ, लगता है मेरा यहाँ से कोई भी क्वालिफाइड नहीं होगा. मुश्किल हो गया रे. ठीक है, और एक देख लो, माउंट रेनियर मिला. माउंट रेनियर जस्ट माउंट वुड का आगे में देखो. माउंट रेनियर कौन सा कंट्री में है देखो तो एक बार. यूएसए में है ना कनाडा में है? यूएसए ना. तो दिस होल ट्री, माउंट वुड, माउंट शास्ता एंड दी माउंट रेनियर, दे आर इन दी यूएसए. बस ऊपर में जो माउंटेन्स है, माउंट मैकेनली बोल के मिला सबसे ऊपर में देखो, और ऊपर हाँ, अलास्का को साइड में मैकेनली. दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका. मैकेनली. हाँ, मैकेनली. हाँ, मिल गई ये सर. हाँ, ये है, लाइक दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन, बट दिस इज नॉट द वोल्केनिक माउंटेन. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड. देन कम टू द साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में बताओ, ऊपर से आ जाओ. साउथ अमेरिका निकलो. साउथ अमेरिका, गो फॉर माउंट कोटोपेक्सी. मिला माउंट कोटोपेक्सी. कंट्री कौन सा है?
माउंट कोटोपेक्सी, Ecuador. इक्वेडर स्पेलिंग इक्वेडर। देन माउंट अकांक्वा, मिला, अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ कहाँ पे है? चिले पेरू, चिले और पेरू बाउंड्री में ना, चिले एंड पेरू, चिले एंड पेरू। और 6 में वहाँ पे और दे बताया था हम, 2 ही दिया था क्या? ठीक। इसके बाद में ये में आ जाओ, यूरोप में आ जाओ, वोल्केनिक माउंटेन। यूरोप का आपको पता होना चाहिए। यूरोप में बेसिकली कौन था? वो मेडिटेरियन सी वाला माउंट वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, देन माउंट इतना, देन माउंट स्ट्रोम्बोली, इटली, ये सब इटली में है। इटली वो नहीं मिलेगा, स्ट्रोम्बोली नहीं मिलेगा, वेसुवियस, इसको मेरा ड्रॉ में हम बना दिया था। ये हो गया यूरोप का इंपॉर्टेंस। नाउ नेक्स्ट, यूरोप के बाद में एशिया में आ जाओ। एशिया में इंडोनेशिया में कौन सा है? माउंट क्राकाटुआ, क्राकाटुआ, इंडोनेशिया। इसके बाद इंडोनेशिया, जापान में, जापान माउंट फुजियामा, जापान। देन माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका। अफ्रीका का कौन सा कंट्री में? माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है बोला? केनिया में नहीं होगा, तंजानिया में हो सकता है, तंजानिया में होगा शायद, देख लो बस। ठीक है, फॉर नाउ दिस आर दी, आई एम गिविंग यू द 11 वॉल्केनिक माउंटेन्स ना, ये आपको जानने से काफ़ी है। बाकी चलो करंट अफेयर में आ गया तो पूछ लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो आप जानना ही है। इसमें से तो ऑलरेडी आपको 7, 8 तो ऑलरेडी मालूम ही है। आप फिल्ड कोन, और वी कॉल दिस है बेसाल्टिक लावा प्लेट्यू। ठीक, सिल्ड, सिल्ड मतलब क्या है? क्या बोलते हैं सिल्ड को? कवच बोलते हैं? नहीं, कवच नहीं बोलते। कवच जो है, जो आप शरीर से टच किया वाला, उसको कवच बोलता है ना। और हाथ में पकड़ने वाला को ढाल बोलता है, ढाल, ढाल बोलता है ना। एम आई करेक्ट? सिल्ड सिंपल, कंपोजिट मतलब हियर व्हाट वी विल हैव, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ए एसिडिक लावा ना। और सिल्ड कोन यानी कि बेसाल्टिक लावा से ही बनेगा। तो वी हैव सीन इट इज़ वेरी सिंपल, it will be fluidic in nature na, because it is going to be made out of the basaltic lava. It will be fluidic in nature, so therefore the fluid will flow for a longer distance, then another will come, longer distance, longer distance, longer distance, longer distance, इस तरह से। ठीक है, so this will, if you see, it will look like a silt, ढाल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको सिल्ट वोल्केनोस बोलते हैं। Are you clear about this? But condition is that it should be made of the basic lava, because basic lava is fluidity, fluidic है।
दूर तक फ्लो होगा सॉलिडिफाई। दैट इज द रीजन व्हाई द फ्लूइडिक लावा और द बेसिक लावा विल नॉट बी एबल टू फॉर्म ए माउंटेन, दे विल फॉर्म ए प्लेट्यूज ओनली। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नाउ देयर आर मेनी प्लेट्यूज कौन से बहुत सारा है। ठीक है, बट वी हैव टू स्टडी द आइलैंड बेसिकली। क्या ये इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है वो है आपका हवाई आइलैंड। ना हवाई आइलैंड ये कहाँ किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ द यूएसए। यू टेक आउट द हवाई आइलैंड एंड ट्राई टू पॉइंट आउट द टू माउंटेन्स देयर, मोना लोआ एंड मोना किया बोल के दो माउंटेन मिलेगा, उसको देखो तो मोना लोआ एंड मोना किया। अब यूएसए का निकालिए अलग से, और अलग से एक मैप होगा। Got two island, Hawaii Island बोल के है। In Hawaii Island you point out the two mountains here. Number one is here मोना, मेरे तो दिखाई नहीं दे रहे रे, मोना लोआ, मोना किया ना, मोना किया, मोना किया। These are the two mountain peaks. मिला? These are the resultant of the नीचे से समुद्र से, this was the oceans, this was the oceans, this was the oceanic crust, this was the oceanic crust, ये oceanic crust है। ठीक है, now what happened, this whole plateaus was built on this, इस तरह से निकला, फ्लो हुआ, सब करते 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 it reached to the surface of the earth, it reached to the surface of the earth and form an island। ठीक है, form an island means it is around from oceanic crust, it is around above 6000 तो हो गया आपका, almost 6000 मीटर ना, it is almost the height of the ocean। After that here we have Mauna Loa and Mauna Kea, Mauna Loa and the Mauna Kea is there। Now you tell me what is the height of the Mauna Loa? Mauna Loa कितना है? 4167 मीटर ना, 9 and this 51 हो गया, ये ठीक है। नाउ 69 हो गया, कोई बात। दिस इज द हाइट ऑफ द मोना लोआ फ्रॉम दिस सरफेस, ऊपर में जो फ्लैटेंट है। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू रियली कैलकुलेट द हाइट ऑफ द मोना लोआ फ्रॉम द ओशन बॉटम, it will be more than 6000 plus 4169, it is around 10,000 above. This one is also 10,000 above. That is why sometimes we call it as a, from the surface it is also considered as the highest peak of the world। ओशन को भी कंसिडर करेगा तो, बिकॉज हिमालय का जो लेंथ है इट इज़ 8848 समथिंग मीटर है, लेकिन ये दोनों का देखो, यहाँ से 4000 है, यहाँ से 6000 ऑलरेडी हाई ही है, तो उसका पूरा जो प्रैक्टिकल, ठीक है, ऑफिशियल हाइट है, इट इज़ मोर देन दी हिमालय। दैट इज़ द रीज़न वाई समटाइम वी कॉल इट एज ए हाईएस्ट माउंटेन पिक ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये ऐसा आता नहीं है, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस टू माउंटेन पिक, मोना लोआ एंड मोना किया। कहाँ पर, वेयर इट इज ए मोना लोआ एंड मोना किया, ये पूछ सकते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन, हवाई आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ओशन। नंबर थर्ड, हवाई आइलैंड इज द पार्ट ऑफ विच कंट्री, इस तरह से पूछ सकता है। हवाई आइलैंड इज इन द वेस्ट और द ईस्ट ऑफ द यूएसए।
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक बार हवाई आइलैंड का अच्छा से देख लो, ठीक है। देन अगेन देयर इज वन इम्पोर्टेंट आइलैंड दैट इज नोन एज दी रीयूनियन आइलैंड। कहाँ पर है? विच ओशन? रीयूनियन आइलैंड। कम टू द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में आइए। इंडियन ओशन का अफ्रीका साइड में जाके आप मेडागास्कर का जस्ट राइट में देखिए, मेडागास्कर का, मॉरिशियस का सामने में। ये भी बहुत बार पूछा है रीयूनियन। मेडागास्कर का राइट में जाइए, मिला? अफ्रीका में पहले जाइए, वो ऑस्ट्रेलिया है भाई। हाँ बस बस बस, मेडागास्कर मिला? मेडागास्कर, मेडागास्कर ये है भाई, ये मेडागास्कर है, ये इसका पार्ट है उसका। इसमें जाइए, यहाँ पे मॉरिशियस होगा, मॉरिशियस का नीचे में आपका रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड। नाउ यू टेल मी, रीयूनियन का ब्रैकेट में क्या लिखा है? फ्रांस लिखा है। दिस इज द ओवरसी टेरिटरी ऑफ द फ्रांस। फ्रांस का अंदर में है ये ओवरसी टेरिटरी, फ्रांस से बाहर ना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो रीयूनियन यूनियन is an example of your this one only, Silk volcano. These both Hawaii and the reunion island, they are also the example of the hot spot. बात देना बताएगा उसको, पहले ये लिख लिया ना। तो ये हो गया आपका ठीक, दिस इज दी, ये हो गया फर्स्ट लैंड फॉर्म। अभी सेकेंड इज योर, थर्ड इज योर क्रेटर। What is the crater? Crater means when volcanic mountains, this is your volcanic mountain na, getting my point? Say for example, this is your volcanic mountain. After solidification there is a space here left, यहाँ पर water, rain water come and settle down here and form a lake. This is known as this space hollow is known as your crater. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। And when water is deposited here, accumulated here, we call it as a crater lake, ठीक है। If the size of the crater is very large, we call it as a caldera. Are you clear about this? What is a crater? This caldera is the larger form of the crater. Now what is important is that you should at least know few crater lake, कुछ crater lake, जैसे कि for example you should know about the lake Toba. It is a crater lake. भारत में crater lake कौन सा है? लोनार लेक कहाँ पर है ये आपको पूछेगा, ठीक है। लेक फुजियामा, it is also a crater lake, ठीक है। तो we will give few examples. So write down example 1, write down Lake Toba. याद है, हम एक बार दिखाया भी था आपको, कहाँ पर है लेक टोबा? एशिया में जाओ, इंडोनेशिया में निकलो। टोबा कहाँ देखना है? इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड में देखो, वो तो सीधा दिखाई देना चाहिए, ब्लू कलर का होगा ना, उसको भी ढूंढते रहेगा तो कहाँ होगा? हाँ तो कहाँ है आप लोग? लेक तोबा को ढूंढेगा तो कहाँ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा आशा ही होगा, अभी तो धीरे ही पर आएगा मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मिलेगा बोल के। मिलाना लेक टोबा, इसमें लिखो लेक टोबा। It is the largest crater lake of the world. Next, लेक बीवा कहाँ देखना है? जापान में देखो, दिखाई देगा आप डायरेक्ट।
लेक फुजियान, जापान में फिर से देखो लेक फुजियान, वो तीनों को लिख लो आगे। लेक तोबा इंडोनेशिया, ब्रैकेट में सुमात्रा भी लिख दो। हाँ, लेक बीवा और लास्ट में लोनार लेक। लोनार लेक कहाँ है? हाँ, इट इज इंडिया। इन विच स्टेट? हाँ, कहाँ में? चांगलांग में, जेके में नहीं, महाराष्ट्र में। बस ये हो गया। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म एसोसिएटेड, लैंडफॉर्म और एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ इज हॉट स्प्रिंग and geyser. What is a hot spring and what is a geyser? Anyone? Hot spring क्या है? गर्म पानी ना, गर्म पानी। Now how the hot springs are formed? ना, you already know. Suppose this is your continental crust. This is your continental crust. Inside the continental crust we have the magma. We have the magma. The heat of the magma will goes up to hundreds of kilometer, yeah, many kilometer, ऊपर ऊपर तक होगा उसका effect. Now what happened? Say for example, this is a mountain, snow-capped mountain. हम लोग अपना ये का ले लेगा। We will take the example of the north east या अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे hot spring है। तो because of the melting of the ice there will be a continuous flow of the what? Continuous flow of your river. River will flow like this. ठीक है? In the process the some of the rivers water will be percolated inside. Percolated होगा ना, नहीं होगा, नीचे आएगा। हिमालयन रीजन में क्यों है हॉट स्प्रिंग? बिकॉज the crust they are very new, recently formed only, no, as compared to the land or the rocks of the peninsular India. They are very hard, but the Himalaya they are newly formed, so therefore lots of water will percolated inside the what called crust. Now what happened? This water may directly come in contact with the magma. It may happen, or it may not directly come in contact, but they will have the effect of the heat of the magma. यहाँ तक आएगा तो हीट तो इफेक्ट होगा ना, बहुत गर्म हो जाएगा। तो सपोज करो देयर इज ए वीक पॉइंट्स हियर, क्रैक हियर, यहाँ से ना, यहाँ से कहीं वीक पॉइंट है। देन व्हेन वाटर गो इनसाइड आफ्टर कमिंग कंटेक्ट विद द हीट ऑफ द मैग्मा, द वाटर विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग। ठीक है, वंस इट इज स्टार्ट एक्सपेंडिंग इट विल create a huge pressure, because of which the water will find out a crack and it will come on the surface of the earth. आएगा ना, नहीं आएगा? When it come on the surface of the earth, it because it is already heated up, it will come in the form of very hot water का form में आएगा ना। That hot water is known as your spring, hot spring जिसको बोलता है। Are you clear? There should be no confusion here, nothing to be confused here. Water will percolated, it will indirectly come in contact with the magma and it will heat it up and it will again find a way and come on the surface of the earth due to the extreme pressure. When the water is heated, it always expand. When it expand, it will, with the pressure, it will come on the surface of the earth, and that hot water is known as the hot spring. This is the reason why the Himalayan region have many hot waters. हॉट स्प्रिंग आपको हर जगह मिलेगा। आपका तावांग जाओ हॉट स्प्रिंग मिलेगा, आपको बोमदिला जाओ हॉट स्प्रिंग मिलेगा, दिरांग जाओ हॉट स्प्रिंग मिलता है आपको ना। इसके बाद जीरो में मिलता है हॉट स्प्रिंग, नहीं वहाँ नहीं है। ठीक है, दापो में है हॉट स्प्रिंग, नहीं है ना। ठीक, ये समझ में आ गया ना। व्हाट हैपन, दिस इज द हॉट स्प्रिंग। नाउ व्हाट इज द गीजर? Now geyser means
the continuous flow of the water, hot water, is a spring. Now what happened, sometime this continuity of the water, they stop, the water will not flow ना, and when it come out with a violent force से निकलेगा बाहर, बस करके निकलेगा, then it will collide, silent for some time, then it will बस करके निकलेगा violent, then it will remain silent. That is known as the geyser. Only difference between the hot spring and the mechanisms are same. The water have to go down, come in contact with the indirectly or directly come in contact with the temperature generated by the magma, and they have to come out. Or only on the time of the coming out. If it is continuously coming out, it is a spring. If it is intervally, it is come out with the force, then remain silent for some time, then come out with this force. That is known as the geyser. Are you clear both? ठीक है. Now there are thousands of the geysers all over the world. There are thousands of the hot springs are there in the all over the world. Even in the India we have many hot springs. However, there are only 3 countries which have the geysers. 3 कंट्री के साथ में ही गीजर्स है. भारत में भी गीजर नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी गीजर. 3 कंट्रीज दे आर द आइसलैंड में आपका गीजर है. आइसलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ द गीजर बोलते हैं हम लोग. आइसलैंड इज देयर. देन वी हैव न्यूजीलैंड ना. न्यूजीलैंड में गीजर है. देन थर्ड इज यूएसए में गीजर है. Among all the geysers of the world, the most important and the renowned geyser is the geyser that is found in the USA. There is a one park, येलो नेशनल पार्क बोल के एक पार्क है यूएसए में, जिसमें एक गीज़र है जिसको सब देखने आता है. गीज़र का नाम है आपका द ओल्ड फैटफुल गीज़र बोल के. ये सब क्वेश्चन दिस हैज़ बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम. द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओल्ड फैटफुल गीज़र इज दैट इट कम्स आउट विथ ए ह्यूज वायलेंट, बस बहुत ऊपर तक जाता है, और इट रिमेन साइलेंट फॉर अराउंड 60 सेकेंड. 60 सेकेंड ना 60 मिनट जैसा, वो चुपचाप ना 60 सेकेंड ही होगा, साइलेंटली बचेगा. फिर एग्जैक्टली एट 60 सेकेंड इट विल अगेन कम आउट विद द वायलेंट इरप्शन. तो उसको देखने के लिए सभी आता है और करता है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट स्प्रिंग एंड गीजर. नाउ मेंस का जो क्वेश्चन है और प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट में आ सकता है, वो क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉट स्प्रिंग एंड द गीजर. क्या इंपॉर्टेंस है बता के देखो. जियोटर्मल जनरेट कर सकता है, जियोटर्मल एनर्जी ना. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, यू नो हाउ टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी विद दिस ना. वो आपको जानने की जरूरत नहीं. आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इसलिए हमको मालूम है जियोटर्मल को कैसे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. लेकिन फिलहाल आप लोग के लिए ज़रूरत नहीं है. बट विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, हॉट स्प्रिंग एंड गीजर वी कैन जनरेट ए जियोटर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करते हैं. दैट इज फर्स्ट थिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली the hot spring and the geyser, they are the attraction site for the tourist के लिए attractions होता है ना. हम लोग hot spring में नहाने जाता है. एंड स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर मेडिकल टूरिज्म जिसको बोलता है. टर्म भूल गया एग्जैक्टली, लेकिन शायद मेडिकल टूरिज्म बोलता है. मेडिकल टूरिज्म मतलब क्या है, दिस वाटर सिंस दे आर गो डाउन बीनीथ and they coming out, they passes through a lots of rock material, rock से passes होता है. and you know the most important constituent or the mineral of the rock is your sulfur dioxide नहीं, only sulfur, ठीक है, sulfur. and sulfur is very good for the skin. अगर आप कोई भी स्किन मेडिसिन होगा, दवाई वगैरह में होगा, उसमें देखो सल्फर कंटेंट रहता ही है उसमें, ठीक है. तो इसीलिए कोई हॉट स्प्रिंग में लॉट्स ऑफ टूरिज्म दे काम फॉर बाटिंग. ऐसे होगा आपका 1-2 घंटा वहाँ पे ऐसे नहाएगा ना, तो बस निकलेगा तो उसका मतलब स्किन छोटा मोटा बीमार अच्छा हो जाता है. तो इसलिए मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं ना. आई जस्ट फॉरगॉट. मेडिकल टूरिज्म और टूरिज्म, इसके लिए हॉट स्प्रिंग गीजर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. एक कई एरिया का इकोनॉमी का बना सकता है. और सेकेंडली जो अभी ये बोला है जियोटर्मल एनर्जी जनरेट करने के लिए. तो ये सब आता है क्वेश्चन ये एपीसीएस वगैरह मेंस में कि इसका क्या बेनिफिट्स है बोल के. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो वी विल जस्ट राइट डाउन फ्यू, ठीक है, स्टेटमेंट ऑन द गीजर एंड द हॉट स्प्रिंग ना. फाउंड ओनली इन 3 places in the world.
geysers are found only in 3 places in the world. Number 1, आइसलैंड. आइसलैंड कहाँ है पता है ना? कौन सा ओशन में है? वेरी गुड. आइसलैंड. इसमें लिखो लैंड ऑफ गीजर. आइसलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ गीजर. नंबर 2, न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड. नंबर 3, यूएसए. यूएसए. यूएसए में लिखो, यूएसए करके आप लिखो द ओल्ड फैटफुल गीजर. ओल्ड फैटफुल गीजर. ओल्ड फैटफुल गीजर. The old faithful geyser in, this is one name of the geyser ना, old faithful geyser, inverted comma में रखे, in येलो नेशनल पार्क ऑफ यूएसए. येलो नेशनल पार्क ऑफ द यूएसए. ये सब पूछा है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा है. ठीक है, राइट डाउन. नेक्स्ट. Next point, write down. These regions of hot spring and geysers, the regions of hot spring and geysers are famous for number 1, tourism, including medical tourism.